Yes, welcome students. I welcome you to another video. It is on differential differential calculus. I want to discuss one more video, one more lecture video. It is on this again partial differentiation. हमने partial differentiation इससे पहले डिस्कस किया था आपके साथ. कुछ लेक्चर्स आए थे डिफरेंशियल कैलकुलस में. उसमें तो एक लेक्चर गया था पार्शियल डिफरेंशिएशन इससे पहले भी, और दो चार लेक्चर इससे पहले, एक ही नहीं दो चार बल्कि. तो आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करता हूं. व्हाट वी मीन बाय होमोजीनियस फंक्शन. इट इज होमोजीनियस फंक्शन. It can be homogeneous function of two variables, three variables and so on. तो स्पेशली हम ज़्यादा डील करते हैं टू वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे ये लोअर कॉन्सेप्ट्स है. इसमें जब आप हायर जाएंगे तो आप तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स आप लेंगे. एडवांस्ड कैलकुलस का पार्ट जो है एडवांस्ड कैलकुलस, वहाँ पे हम लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स. तो यहाँ पे ज़्यादा टू से या थ्री से हम काम करेंगे. तो चलिए पहले हम लेंगे इसका डिफिनीशन. इसका डिफिनीशन कैसे हम लेंगे इस होमोजेनियस फंक्शन का. दिस इज द डिफिनीशन पार्ट. डिफिनीशन इज दिस. वी राइट a function. It is very cold here. Fans are not working. A function of two variables. Two variables of the form two variables say x and y हम लेते हैं. say x and y of the form f of xy is equal to, ये हम इस फॉर्म में लेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. let it be a naught. A naught is some constant, some coefficient. It is not a variable, it is a constant. So if it is our integers, then we say integral coefficients. Our rational numbers, then we say rational coefficients. Okay, we say a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 y, then plus a2, it is suffix here, script x raised power n minus 2 y square, so on. Last but one will be a n minus 1 x raised to power x into y raised power n minus 1, then plus last is a n y raised power n. Name this first. You just look here. Each term here is of degree n. Here variable has degree n. Here you have two variable. This has degree n minus 1 and y has degree 1. When you add them, it is degree n. Here also it is degree n. Then you go last. y का पावर यहाँ पे n है. It is degree n. यहाँ पे आप add कीजिए 1 x का पावर and plus n minus 1. It is also of degree 1. In which each term is of degree n. Each term is of degree n. Is called, this equation is called homogeneous function in two variables x and y. Actually, we sometimes give the definition in another way also. We can rewrite equation number 1 in this form. We can rewrite equation. We rewrite
equation number 1 as f of xy is equal to, take throughout x raised for n common, you see, I will take x raised for n common. Here it is a naught, this is x raised for n minus 1 y, a naught plus, you write a naught plus, I took x raised for n common, then plus x raised for n minus 1 y, just look, this is constant a1, x raised for n minus 1 y by xn, because I am taking this common, means I am dividing by this, then plus a2, x raised for n minus 2 y square by x raised for n, then last but one will be coefficient an minus 1 x y raised for n minus 1 by x raised for n plus an y raised for n by x raised for n. You see, we can write this in this way also now. You see how we write. It is f of xy is equal to x raised for n bar. It is a naught plus, okay, then a1, यहां देखिए आप, जब आप इसको नीचे लाएंगे इट विल बी ओनली एक्स रेज फॉर 1, जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे माइनस एन प्लस 1, दिस इज ओनली y बाई एक्स, इट इज y बाई एक्स. फिर यहां आइए आप, यहां ये नीचे ला के आएगा नीचे एक्स स्क्वायर, दिस इज a2 y बाई एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके देन प्लस an माइनस 1, इसको नीचे लाइए आप x, इसका पावर है x का पावर n, ये वाला x नीचे आएगा x रेज फॉर माइनस 1, देन टेक द बेसिस सेम पावर एट, दिस विल बी y बाय x रेज फॉर n माइनस 1, सिंप्लीफाई करके, सो लास्ट टर्म विल बी an y बाय x रेज फॉर n. तो इसमें क्या हुआ, हमने हर एक टर्म इसमें लिखा इन द फॉर्म ऑफ y बाय x. ये भी है यहाँ पे y बाय x फॉर्म में, यू कैन राइट हियर a नॉट y by x raised power naught, this here, this is a naught, you can write here y by x raised power 0, this is a1 y by x raised power 1, a2 y by x square, then an minus 1 y by x, देखो सिमेट्री क्या आ रही है, y n minus 1 an y by x raised power n. So this is function which is of the form, in the form y by x. So we can write, we could express f of xy as x raised to power n, say some other function g of, we name this function g of y by x, it is in the form of y by x. We could write it in simplified form this. So in certain cases, when you have a function in two variables such that it is expressible, you can express it in the form of x raised for n g, some function, g stands for it's this function under bracket, some function g of y by x, that is each term in the variable on this function is on the form y by x, every term is in the form y by x. Or you can take, or we can write first also, in which form, it is f of x by y. अगर आपने y रेज पर n को कॉमन निकाला, यहां हमने क्या कॉमन निकाला था, x, अगर y बाय n को कॉमन निकाला था तो उस वक्त क्या आएगा, ये इस फॉर्म में आएगी, सॉरी y बाय x को कॉमन निकाल के यह आएगा a नॉट x बाय y रेज फॉर n प्लस a1 x बाय y रेज फॉर n माइनस 1, लास्ट में आएगा ये प्लस an y बाय x बाय y रेज फॉर नॉट. इस तरह भी आ सकता है, मीन्स यू कैन राइट इट f of x by y is equal to y raised power n some function in x by y. This is homogeneous function. So we have come to the conclusion, if we have a function in two variables which is expressible
in the form f of x y as x raised for n some function in the variable y by x only. y by x के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. It should be no. It should not be like y by x x y by x into x square. No, every term should be in the form y by x. आपने देखा वेरिएबल जितने भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ y by x. Why? How? y by x raised for 0. यहाँ पर हमने किया y by x और कहीं आपको x y नजर नहीं आ रहा. यहाँ भी हमने किया ओनली y by x, कहीं x या y इसके साथ नजर नहीं आ रहा. लास्ट में भी आया y by x raised for n. या हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं yn कॉमन, इट इज x by y, each term in the bracket is x by y. So if we have a function of two variables which can be expressed either in this form or in this form is called a homogeneous. This is the definition. If you look into the books, अगर आप बुक्स पे देखेंगे, अपनी जो आपकी बुक है वहाँ वो डायरेक्टली लिखते हैं f of xy is said to be homogeneous if we can express it in this form or we can express in this form. मैंने यहाँ पे आपको बताया जब हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन होती है इन टू वेरिएबल्स तो उसको हम कैसे एक और डिफिनीशन है उसके बाद मैं देता हूँ. तो यहाँ से हमें डिफिनीशन डेवलप हो गई. यही हमें काम आएगा जो आपके सिलेबस में एक थर्म है, छोटी सी थर्म, दैट इज Euler's theorem on homogeneous functions. So I will be sharing that. First I will give you the definition. Wait a bit. चलिए अब हम एक फॉर्मल डिफिनीशन आपको देते हैं होमोजीनियस फंक्शन का. हमने डिफिनीशन में से डिराइव किया, डिफिनीशन कैसे आती है आप इस तरह स्टार्ट करेंगे. लेट f of xy be a function of two variables x and y. It is a function of two variables x and y. Then f of xy comma करके is said to be homogeneous if it can be expressed in the forms, if you are in a position to express it in the forms like f of xy is equal to x raised to power n, say some function, say it is psi of y by x, some function in y by x, or you can write it f of xy is equal to y raised power n, some function, let it be g as you write, g of x by y. If you can express it in this form or you can express it in this form, then we say it is a homogeneous. For example, I can give you examples. अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो आप बार बार देखते हैं कहीं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी नजर आ रहा है हमें होमोजीनियस है बिकॉज एवरी टर्म हियर इज इन द फॉर्म ऑफ this degree 2 1 plus 1 degree 2 degree 2. You can write it in this way also. You see f of xy is equal to, take x square common, this is 1, 2hxy by x square plus y square by x square is equal to x square. You can write this one as y by x, doesn't matter, y by x raised power naught, plus you can write it 2h, it is 2h, xx goes y by x, then plus y by x square. You see, you could write it in the form of x square, some function in y by x. This is in the form of y by x, this is in the form of y by x, y by x. Clear? This is the homogeneous. You may take some more example. Say you have f of xy is equal to root x plus root y by x plus y.
Is it homogeneous? You see how this is f of xy. You can write, take root x common. It is 1 plus root y by root x by x common. It is 1 plus y by x. So it is f of xy is equal to root x by x is root x. This you can write 1 plus y by x raised to power 1 by 2, that is root, upon this is 1 plus y by x. So you have expressed each term here in the form of y by x. It is f of x by y, x by y. F of xy is x raised to power 1 by 2. This is degree. Because here you could write each term in the form of y by x. This is y by x naught. This is y by x. Whatever power is rational or this integer, it is 1 plus y by x raised to power 1, y by x raised to power 0. So wherever you have variables here, every variable you could write inside in the form of y by x. अब आपको डिग्री देखना है, डिग्री क्या है, डिग्री आपको देखना है x का पावर क्या है बाहर. So it is homogeneous of degree n is equal to 1 by 2. ये डिफिनेशन. या अगर आप वहां से कॉमन निकालेंगे रूट x के बदले में रूट y, तब भी आप देखेंगे यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म जो दूसरी डिफिनेशन हमने दी है, इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म. समझ आया आपको? दूसरी डिफिनेशन भी हमारे पास है. अगर आप इनकी वेरिएबल 3 पे आप काम करेंगे, वेरिएबल 4 पे आप काम करेंगे, वहां पे आप अदर डिफिनेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर योर सिंप्लिसिटी. वो भी मैं देता हूँ. होमोजीनियस फंक्शन, वहां हम कोई पैरामीटर यूज करते हैं विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, वो भी मैं डिफिनेशन देता हूँ जस्ट. Yes, we have another form of definition that you can use in your terms or verifying the degree of a homogeneous function. This is also another way. We write a function in two variables, x and y, of the form f of xy is said to be homogeneous if it can be expressed as f of tx, ty is t raised to power n f of xy for all values of t. रियल एनालिसिस में हम काम कर रहे हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी. तो आपने क्या किया इसमें, किया आपने x को रिप्लेस बाई tx, y को रिप्लेस किया ty से. तो जब इसको सिंपलीफाई किया, बाहर आपको आता है t रेज टू पावर n, अगेन f ऑफ x, ये t रेज पावर n, ये होगा होमोजीनियस. इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, सॉरी ऑफ डिग्री n. ठीक है, वहां भी हमने जब लिखा, मैंने मत भूल गया होगा, जब हम f ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं x रेज पावर n सम फंक्शन ऑफ y बाय x, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n. यहाँ पे t रेज पावर n, t का पावर जो आएगा वही कहलाता है डिग्री. अब देखिए कैसे मैं कंसिडर करता हूं, यहाँ पे कंसिडर, लेट मी कंसिडर f of xy as x cube plus 3 x square y plus y cube. ये मैंने एक फंक्शन दिया सिंपल. अगर आप देखेंगे यहाँ पे इट इज ऑफ होमोजेनियस डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे 2 + 1 3, और यहाँ पे b पावर y का 3. यहाँ भी x और y नजर आ रहा है, उनके पावर उसको ऐड करके हमें मिलता है डिग्री 3. लेकिन मैथमेटिकली जो डिफिनेशन हमने दी वो हम यूज करेंगे. अब हम क्या करेंगे, चलो x को हम रिप्लेस करेंगे tx से, y को रिप्लेस करेंगे ty से. t इज सम
पैरामीटर, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। आप देखिए क्या हो रहा है, व्हेन आई रिप्लेस इट इज एफ ऑफ टी एक्स टी वाई फंक्शन। अब ये रिप्लेस हुआ, इट इज जस्ट द इमेज हो गया, इट इज टेकिंग द इमेज टी एक्स टू टी एक्स, वाई टू टी वाई। दिस इज टी एक्स क्यूब plus 3 times tx square. This y is your ty. This is plus ty cube. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज f of tx ty is equal to, you can take it, it is t cube x cube. Simplify it. It is 3t square and this t is t cube. Then x square y. Then you have this plus t cube y cube. Clear? You can write it f of tx ty is equal to, take t raised for 3 common. This will be x cube plus 3 x square y plus y cube. तो फंक्शन वापस आ रही है जो आपकी फंक्शन थी फर्स्ट। सो यू हैव गॉट f of tx ty is tx, sorry, ty is t cube, यही होगा इसका डिग्री f of x। f of x है ये, आपको ये वापस आ रहा है। सो इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस ऑफ डिग्री n is equal to 3। सो होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, या तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, या होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x raised for n some function in y by x, or y raised for n some function in x by y. This is what we mean by homogeneous function of 2 variables, or even you can take 3 variables. Now you have very important theorem on this that I will state. It is Euler's theorem. Euler's के theorems बहुत से हैं, Euler's ने बहुत से theorems दिए हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम देखें, Euler's theorem on homogeneous functions, तो जिसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में आएंगे। सो आई विल राइट हियर, दिस इज Euler's theorem on homogeneous functions। चलो ये हम देते हैं इसका स्टेटमेंट। दिस इज द स्टेटमेंट। यूलर्स वेरी सिंपल है ये, जब आपको डिफिनेशन पता चला होमोजीनियस फंक्शन का, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज स्टेटमेंट। इट इज इफ f of xy is a homogeneous function in 2 variables, you can prove the result for 3। शायद आपके बुक में 3 का है, बुक भी आप देखिए। in 2 variables x and y, then if f of xy is a homogeneous function of degree n, of degree n, if f of xy is a homogeneous function of degree n, say in 2 variables x and y, then this happens। You see how simple this result is। then x times partial derivative of f, या अगर हम u देंगे यहाँ पे, if u is equal to f of xy is a homogeneous function of degree n in 2 variables x and y, then partial derivative of, you can write, then x dou u by dou x plus y dou u by dou y is nu। n is the degree of this, degree is n। if it is degree 2 then here it will be 2, it is degree 3, n के बदले में 3 आएगा।
या इस तरह भी है ये, डोंट गेट कंफ्यूज, यू कैन राइट एक्स डो एफ बाई डो एक्स, इट इज वन एंड द सेम थिंग, प्लस वाई डो एफ बाई डो वाई पार्शियल इज इक्वल टू एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। ये है आपका स्टेटमेंट इसका यूलर्स थ्योरम का, वेरी सिंपल। अगर 3 वेरिएबल्स में है ये, देन ये हुआ एक्स डो एफ बाई डो एक्स प्लस वाई डो एफ बाई डो वाई प्लस जेड डो एफ बाई जेड, देन एन टाइम्स अगेन एफ ऑफ एक्स वाई जेड। बेटर रहेगा अगर 3 वेरिएबल्स में आप जाएंगे, इस वाले डिफिनेशन से कीजिए, इस वाले डिफिनेशन से जल्दी आपको मिलेगा। फिर आप एन को टी को कोई भी वैल्यू दीजिए 1 दीजिए तो उसमें ये निकलेगा अगर आप 3 वेरिएबल पे जाएंगे। तो 2 आपके सिलेबस में शायद है, दिस इज यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑन 2 वेरिएबल्स एंड दिस इज ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, रिमेंबर। तो आपके सिलेबस में है पार्शियल डिफरेंशिएशन, अदरवाइज तो यूलर्स थ्योरम तो हमारे पास बहुत से हैं, मुख्तलिफ यूलर्स थ्योरम्स है। सो वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ यूलर्स थ्योरम। इसका जो इसका प्रूफ है ये विद इन कुछ लाइन्स है, ये मैं बताऊंगा इसका प्रूफ, आप जस्ट मेरे साथ रहिए। तो हम इसके प्रूफ पे आते हैं। ये इसका प्रूफ है, प्रूफ इस थ्योरम का मैंने थ्योरम वहीं रखी। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस u is equal to f of xy is a homogeneous function of degree n in variables x and y, then by definition what happens? What is the definition? What does this definition say to us? Right definition. Then this implies that we can write u as x raised to power n, some function in this x raised power n g of इसका नाम लीजिए फर्स्ट, g of what? y by x। डिफिनेशन को जाइए, वी कैन राइट इट x raised power n, जो x raised power n से अंदर फंक्शन आता है ब्रैकेट में वो सारा आता है इन द फॉर्म ऑफ y by x, जो आपने देखा डेफिनेशन में। तो इट इज सेकंड। चलो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होता है? इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। ये दोनों फंक्शन जो है इनमें x इन्वॉल्व है दोनों जगह, इसलिए प्रोडक्ट रूल होगा। इसका पहले डेरिवेटिव एंड डाउन, दिस इज x रेज पावर n माइनस 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज g ऑफ y बाय x। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन प्लस राइट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव दैट इज g डैश y बाय x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय x। क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ y बाय x विद रेस्पेक्ट टू x? y तो कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या है? माइनस 1 बाय x स्क्वायर। यू नो, क्योंकि आपके डिग्री कोर्सेज में है 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय x क्यूब, 1 बाय x रेज पावर n का डेरिवेटिव माइनस n डिवीजन बाय x रेज पावर n प्लस 1। इस तरह आपने याद रखा है। तो 1 बाय y तो यहाँ पे रहेगा, तो 1 बाय x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज डो u बाई डो x, दिस इज n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1, इट इज g ऑफ y बाय x, देन माइनस, इसको आप ले सकते हैं यहां पर भी x रेज पावर n बाय x स्क्वायर इंटू y, ये साथ है y, इंटू g डैश y बाय x, ये इंटू है यहां पर। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x y एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये आपसे मांग रहा है x डो u बाई डो x, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स बाय x। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, क्योंकि हमें x
partial derivative of u with respect to x या x partial derivative of f with respect to x, यह आएगा आपका x टाइम्स dou u by dou x, इसको x से मल्टीप्लाई, इट इज n x into x raised power n minus 1 g of y by x, शाबाश, यहां से x से मल्टीप्लाई, दिस इज x into x raised power n x square into y, इट इज g dash y by x, हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज x dou u by dou x, इट इज n बेसिस सेम पावर ऐड, इट इज ओनली x raised power n, ये n है यहाँ पे, इट इज योर g of y by x, दिस इज माइनस, ये ऊपर जाएगा फिर इसके साथ कनेक्ट होगा, या ये काटिए एक बार तो ऊपर जाएगा x raised power n minus 1 y साथ, इट इज g dash y by x, ये मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा, इसका नाम मैं देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, ये x dou u by dou x मैंने निकाला, differentiate this again, differentiate equation second again partially इसको करेंगे differentiate with respect to y, अब हम जा रहे हैं इसको with respect to y डेरिवेटिव करेंगे, it is partial derivative of u with respect to y is equal to, यहां पे आपको है x raised power n मल्टीपल कांस्टेंट, इसको रखेंगे यहां पर ही x raised power n as it is, x raised power n because we are differentiating with respect to y, तो पार्शियल डेरिवेटिव में x को हम कांस्टेंट मानेंगे, समझा, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं होगा, बी कॉशियस, विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ इसका होगा क्योंकि इसमें y है आपको, इट इज g dash y by x, ओके, g dash y by x, और y by x का विद रिस्पेक्ट टू y, x तो कांस्टेंट 1 by x रहेगा, y का आएगा 1, सो इट इज 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ y by x विद रिस्पेक्ट टू y का n 1, y का 1, तो 1 by x मल्टीपल कांस्टेंट है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, हम जस्ट सिंप्लीफाई, दिस इज x रेज पावर n माइनस 1, कैसे, ये वाला x ऊपर जाएगा, ये n माइनस 1, इट इज g dash y by x। इस स्टेप के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर मैं इनको ऐड करूंगा, जस्ट वेट। चलिए अब हम इसको ये जो लास्ट दिस सेटअप है इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, ये क्या आएगा, y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, इसको करते हैं y से, ये आता है, ये हमारे पास है राइट साइड, ये मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ आया, it is x raised to power n minus 1 y, it is g dash y by x, this is equation number 4। तो अब हम ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आएगा, थर्ड क्या हमारे पास है, वहां देखिए, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव x dou u by dou x, लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, यहाँ आता है y dou u by dou y, अब राइट साइड से ऐड करते हैं, इसका राइट साइड क्या आया, थर्ड पे नजर डालिए, इट इज n x रेज पावर n माइनस 1 g ऑफ, yes, g ऑफ, इट इज जस्ट लुक हियर, यहां मैंने ठीक किया, यस आई एम सॉरी, ये मुझे ऐड करना है, एन एक्स रेज पावर एन, ये मैं कर रहा हूँ, एक्स डॉट, ये है मेरे पास थर्ड, एन एक्स रेज पावर एन, एक मिनट, तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाला था, चलो थर्ड को नजर डालिए, इट इज एन एक्स रेज पावर एन, थर्ड, एन एक्स रेज पावर एन, एन एक्स रेज पावर एन, लुक हियर, g of y by x, g of y by x, then minus x raised power n minus 1 y, this is g dash
y by x, then plus इसका फोर्थ का राइट साइड, it is x raised to power n minus 1 y, it is g dash y by x, by ये और ये गया, they are same opposite in sign, तो हमें यहां पर मिला x dou u by dou x plus y partial derivative of u with respect to y is n x raised to power n g of y by x. Now what is this x raised to power n g of y by x? वहां देखें, x raised to power n g of y by x, it is u using second. What is this? It is x dou u by dou x plus y dou u by dou y is nu. This almost proves that homogeneous function on two variables on partial differential equation. अगर आप u को आप फर्स्ट लिखेंगे आप, या यूज फर्स्ट, आप कंफ्यूज मत हो जाएंगे, आप f में भी आंसर दे सकते हैं, u को वापस दीजिए वैल्यू f of x y, it is x dou f by dou x plus y dou f by dou y is n times f of x y. So इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसका रिजल्ट. दिस वाज योर homogeneous equation, proof of the homogeneous equation on partial differential equation of degree n. तो इसी तरह आप अगर डिग्री 3 है वो भी आप कर सकते हैं, उसका प्रूफ आपके बुक्स वगैरह में होगा. तो आप देखिए सिंपल एप्लीकेशन अगर हम करेंगे इस पे, एक एप्लीकेशन कैसे हम करते हैं उनमें बताता हूँ. जस्ट लुक, चलिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है. वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर z इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई x. अगर हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, ये इस तरह देखेंगे, अगर हम देखेंगे इसका डिग्री भी यहाँ पे 0 है, x बाई वाई बाई है, ये भी है. डिफिनेशन क्या कहते हैं? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x बाई वाई और y बाई x. ये फंक्शन इस तरह है, ये है x बाई वाई में अगर हम लिखेंगे दिस इज z इज इक्वल टू x रेज टू पावर नॉट साइन इनवर्स, या y रेज पावर नॉट, नो प्रॉब्लम, साइन इनवर्स x बाई वाई, दिस इज प्लस x रेज पावर नॉट tan इनवर्स y बाई x. सो डिग्री यहाँ पे है, डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन इज n इज इक्वल टू 0. इट इज ऑफ डिग्री 0. अगर हम अलग अलग भी लेंगे, इस तरह भी लेंगे, डिग्री 0 है. तो यूलर्स थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा? ये इंप्लाई करेगा x dou z by dou x प्लस y dou z by dou y इज n इंटू z. लेकिन n है हमारे पास 0 इंटू z, दिस मस्ट बी 0. अगर हम दो स्टेप्स में इसको वेरीफाई करेंगे, अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वहां आपको वेरीफाई, मतलब आपको सब्जेक्टिव नहीं करना है, आपको जस्ट देखना है अगर ये यहाँ यूलर्स थ्योरम वेरीफाई होती है, इसकी डिग्री क्या रिजल्ट आएगा. आप कहेंगे वहां पे x dou z by dou x प्लस y dou z by dou y विल बी 0. समझे आपको? लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे इसको, क्या ये आता है इसके बराबर, इसको वेरीफाई हम करेंगे. वेरीफाई इस तरह करेंगे. वेरीफाई इसका नाम मैं रखता हूं फर्स्ट डिफरेंशिएट पार्शियली. विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज साइन इनवर्स का पता है क्या आता है, याद है आपको 12th क्लास के, ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन. इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो ये फंक्शन है इसका स्क्वायर x बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वट एवर द इनवर्स फंक्शन इज उसका स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ x by y with respect to x प्लस, इसी तरह यहां पे tan इनवर्स का 1 by 1 प्लस इसका स्क्वायर y by x का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ y by x with respect to x. ये आपने किया है लोअर क्लासेस में. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स. तो इसका मैं सिंप्लीफाई करता हूं. इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक तरह से देखिए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 y तो मल्टीपल कांस्टेंट है 1 बाई y, इट इज 1 बाई y बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर. फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, याद रखिए ये 1 बाई x का आएगा, दैट इज माइनस
1 by x square, y तो मल्टीपल कांस्टेंट है, इट इज y 1 by x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 by x square by 1 plus y square by x square. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज, ये आएगा 1 by y, ये y स्क्वायर यहाँ पे जाएगा रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y रूट से बाहर आएगा, दैट इज y स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा y, ये और ये कैंसिल आप करेंगे यहाँ पे, दिस इज प्लस माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बाय ये एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे गया, सो आपका डो z बाई डो x जो यहाँ पे आता है, इट इज सिंपली 1 बाय अंडर रूट ऑफ y square minus x square, then minus y by x square plus y square. As per requirement क्या करेंगे हम इसको multiply both sides by x, जो इसमें ईलर्स थ्योरम में जरूरत है, multiply both sides by x, क्या आएगा ये, it is x dou z by dou x is equal to x by अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई, एक्स से मल्टीप्लाई में करता हूँ, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेम दिस इक्वेशन सेकंड, I name it second. Now we will differentiate this again partially with respect to y. Just look what we get. It is very cold in Kashmir at this time. That is why our board, this marker, we have having marker, this ink, it sometimes becomes permanent due to this coldness. Now differentiate this equation. Differentiate first again partially with respect to y. You see, it is partial derivative of z with respect to y is sin inverse का इसी तरह 1 by 1 plus under root of 1 minus x by y square, 1 by under root of 1 minus x by square, x by y का with respect to y हम करते हैं, derivative of x by y with respect to y जाएगा, then plus tan inverse का इसी तरह tan inverse, it is 1 plus y by x का square, then derivative of y by x with respect to y, ये क्या आएगा, dou z by dou y, कीजिए डिफरेंशिएशन, y with respect to y हम कर रहे हैं, ये x का आएगा माइनस, it is minus x as it is x by y square by under root of 1 minus x square by y square, then this is plus with respect to y have 1 by x, this is x square plus y square by x square. जस्ट कॉशियस रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y मैं कर रहा हूँ, इसका आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, नीचे है 1 by y का माइनस 1 by y square, दिस इज डो z by डो y इज इक्वल टू माइनस x by y square by अंडर रूट ऑफ y square माइनस x square, ये बाहर जाएगा रूट से y square, वो आएगा ओनली y, then this is plus 1 by x into x square plus y square by x square. चलो एक स्टेप और करते हैं, it is dou z by dou y, ये ऊपर जाएगा minus x by y square into y by under root of y square minus x square, this is plus 1 by x, ये ऊपर जाएगा x square by x square plus y square, ये एक बार x, ये एक बार y, multiply both sides by y, multiply both sides by y. अब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लुक क्या होता है, y से मल्टीप्लाई करने से इसको हम मल्टीप्लाई y से करेंगे, आप भी देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, इट इज y टाइम्स डो z बाई डो y इज इक्वल टू, यहां देखिए, यहां पे आपको बचता है माइनस x बाई वाई,
क्योंकि ये है माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई, जब मैंने ये वाई ऊपर लिया आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो इट इज माइनस एक्स बाई वाई, वाई से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ओनली आएगा एक्स, इट इज माइनस एक्स, वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। शाबाश, यहाँ आपको बचता है खाली यहाँ पे एक्स, क्योंकि ये कट जाता है, और वाई से मल्टीप्लाई, इट इज प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर third. Adding second and third. This is x dou z by dou x, y dou z by dou y is equal to, ऐड कीजिए, इसका क्या आता है x by under root of y square minus x square. Look here, minus xy by x square plus y square minus x by under root of y square minus x square plus xy by x square plus y square. ये इसके साथ, ये इसके साथ, दिस इज जीरो। तो वेरीफाई हो गई आपका व्हाट, यूलर्स थ्योरम, क्योंकि आपने पहले ही देखा इसका डिग्री जीरो है, तो राइट साइड आएगा n का वैल्यू जीरो इंटू एफ, दैट इज जीरो। सो दिस इज x dou z by dou x plus y dou z by dou y is 0. This verifies. This verifies. Euler's theorem. तो जब आपको आएगा, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 1 मार्क का आपको होगा, 1 मार्क का, उस वक्त आप उसी तरह से कीजिए जो मैंने पहले डिग्री देखी क्या पे है इसमें, होमोजीनियस फॉर्म में लिखिए, डिग्री निकालिए। अगर डिग्री 3 है आप लिखिए, ये आएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3z, अगर डिग्री 3। अगर 2 है तो, लेकिन जब ये कहता है आपको वेरीफाई कीजिए इसका, है तो, और ये मतलब 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इस तरह जाना है आपको जरूरी इन दैट केस, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर आगे जब मैं आपसे मिलूंगा इस प्लेटफॉर्म पर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो उसमें मैं आपको कुछ और एप्लीकेशन देता हूँ यूलर्स थ्योरम पे, कभी कभी आता है यूलर्स थ्योरम पे एप्लीकेशन। तो till then you revise this. Thank you very much, and finally I request you to enhance your skill and this what is called this logic by doing more and more mathematics. Thank you very much.